next topic is complex quadratic equations, or it can be equations reducible to quadratic equations. There are some equations which are actually not quadratic, but that can be reduced to quadratic equations. We can say that complex quadratic equations are equations those are reducible to quadratic equations. So the one thing is that how we came to know that this can be reducible to quadratic equations. So remember one thing, there is a one tip I always share with my student. If you look at the equation, then there will always be x bar distributed like this. There are two x usually in each equation. One x is actually in these type of equation is always power of 1x is always half of the other. If power of 1x is 2, the other will be 4. If power of 1x is cube, then the other will be x6. 6. If x power 4, then the other will be 8. That means double of the other. Okay. So if x power 1, then the other will be 1. Double of 1 is 2. 2. Okay. So x power, if this is half, the other will be 3. half. How can we double it? 1 by 2, you have to multiply by 2. So 2 multiplied by 2 is 1. So other will be 1. If this is 2 by 3, the other will be 1.5. 2 by 3. How can we double? In fraction form, you have to tell me. इसको आपको स्क्वायर से मल्टीप्लाई 2 से multiply कर दें, it will be 4 by 3. 4 by 3 ठीक Okay. So if x is 1 by 3, the other will be 2 by 3 2 by 3. Okay. तो और इसमें कौन सी possible हो सकते हैं? If x is for example 1 by 5, the other will be 2 by 5. Okay. यहाँ से आपको पता चल जाता है कि this equation can be reducible to quadratic equations. You got it? So if now what will be the next step? The lesser power of x, जैसे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 8 है, उसको आपने वायलेट कर लेना. जैसे यहाँ पे देखिए ना. So this there is one is x here, the other is x power 4. It means that this can be reducible to quadratic equations. x 4 है और ये कितना है? x square है. So next step क्या होगा कि जो lesser power है x power 2, उसको आपने कोई other variable let कर लेने. Like I am going to let it t. इसको क्या कर लेने? t. तो x4 को क्या रिप्लेस करेगा? मीन्स कि दोनों साइडों पे कर देना आपने. ठीक हो गया. तो ये क्या आ जाएगा? t स्क्वायर. जो हाफ, क्योंकि ये हाफ है ना, तो x स्क्वायर का डबल कितना होगा? x4. तो ये क्या हो जाएगा? t स्क्वायर. और यू कैन से दैट स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. ठीक है. अब यहाँ पे लिखने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. तो वो क्या हो जाएगा? x4 बन जाएगा और ये t स्क्वायर आ जाएगा. ठीक. उसके बाद आपने इसको सॉल्व करना है. सो पुट दिस वैल्यू इनटू अबव इक्वेशन. सो इट विल बी 4t स्क्वायर minus 37t plus 9 equal to 0. So then make factor 4 multiplied by 9, 36. So the factor of 36 which gives us minus 37, 1 multiplied by 36 ही होगा. So 4t square, 36t, so 1t. I always said put sign at last because this sign with 37 comes with a bigger number and 1 is also negative. So this is 4t which you have learned in O level, t minus 9. Minus 1 t minus 9 is equal to 0. Then t minus 9 into 4t minus 1 is equal to 0. Then there is t is equal to 9 and t is equal to 1 by 4. Last of all, remember one thing. हम जो भी वैल्यू लेट करेंगे ना, आखिर भी उसको दोबारा सब्स्टिट्यूट करना होगा. ठीक हो गया. हमने क्या सब्स्टिट्यूट एक्स स्क्वायर को टी लेट किया था ना, अब टी की जगह दोबारा हमने एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म. एक्स का आंसर उसने पूछा था, टी का नहीं पूछा. हमने एक्स उसको वापस लेट करने. तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by 4. मीन एक्स स्क्वायर लेट किया हुआ था. एक्स कैसे निकालेंगे? स्क्वायर को कैसे खत्म करेंगे? एक बात याद रखना, जो भी एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की जो पावर होगी ना उसका रेसिप्रोकल ले लेना. अगर 2 हो तो 1 by 2 ले लें. इफ देयर इज 2 then we will take 1 over 2. 1 over 2 is the square root. Okay. If there is 3, then we will take cube root. 1 over 3 is called cube root. If power is like this, x power 2 by 3. So how can we remove 2 by 3? By taking the power. इसका reciprocal क्या होता है? 3 by 2. आपने दोनों साइडों पे 3 by 2 ले लेनी है पावर. ठीक है. और इसको 9 की 3 by 2 जो है वो कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेनी. You got the point? So अब हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व कर लें. x यहाँ पे x स्क्वायर है तो x is equal to plus minus 3 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 over 16. स्क्वायर रूट ले रहे हैं. 1 over 2. 1 over 2. ये याद रखना. ठीक है. तो ये इसके 4 सॉल्यूशंस आ जाएंगे. अब ये देखें इसमें x माइनस. नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट लुक एट दिस. कैन दिस इक्वेशन बी रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस? इसकी पावर 1 है. हाँ जी. और इसका स्क्वायर 1 over 2. और ये कितनी है? तो हाफ होगी. हाफ है. एक जो है वो दूसरी का हाफ है.
ठीक है, आप कह सकते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा, तो वो पता चलने वाली ये डिटेल मैंने सारी आपको दे दी है। ठीक है, ये याद रखें, बस हाफ है डबल होनी चाहिए। तो हम किसको लेट करते हैं, जो लेसर बार होती है, x 1 over 2 is equal to t. और इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। x को किससे रिप्लेस कर दें, टी स्क्वायर से, माइनस 4t माइनस 12। अब 12 के फैक्टर जिनसे 4 आता है तो वो मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ, माइनस 6 होगा और 2. t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो t इज इक्वल टू 6 और t इज इक्वल टू माइनस 2। और लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको हमने वही x की फॉर्म में. यस x वाली फॉर्म में। तो t 1/6 है, t को क्या हमने किया हुआ था, x 1/2 इज इक्वल टू 6, x 1/2 इज इक्वल टू माइनस 2। x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे हम, इसका रेसिप्रोकल लेंगे. यस रेसिप्रोकल, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 2/1. 2/1। सो व्हाट इज 2/1, स्क्वायर, सही है। तो x की पार्ट 1/2 है, तो 2/1 मीन्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया. आगे समझ, हाँ, स्क्वायर हो गया. ठीक है। तो यहाँ माइनस 2 का भी स्क्वायर, ठीक. तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, x इज इक्वल टू 36 और x इज इक्वल टू 4। ठीक है, स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, स्क्वायर लेते हैं तो एज इट इज आंसर आता है। ये तो आपको आई होप पता हो। नेक्स्ट देखें, इसमें क्या हम करेंगे, बता सकते हैं आप, x 6 है और 3 है, तो x 3 is equal to t. x3 इज इक्वल टू t, वेरी गुड, और फिर x is equal to t square. t स्क्वायर, वेरी गुड, वेरी वेल बेटा। सो इट विल बी t स्क्वायर माइनस 7t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो इसके फैक्टर में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि फैक्टर आप ओ लेवल में सीखते हैं, आई होप ये आपको पता होंगे, t माइनस 8 और t प्लस 1। ठीक है, अगर नहीं पता तो आप अलग से सॉल्व, इसको डायरेक्ट नहीं करना, गलती नहीं करनी ये फैक्टर्स की, सही। तो t इज इक्वल टू 8 एंड t इज इक्वल टू माइनस 1। फिर क्या करेंगे आखिर में, x में वो दोबारा वही वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे ठीक। जो हमने लेट की हुई होंगी, सही। तो क्या क्यूब को कैसे खत्म करते हैं, क्यूब रूट. यस वेरी गुड, शाबाश। 8 का क्यूब रूट, तो ये आ जाएगा x2, और इधर 1 का क्यूब रूट क्या होगा, ये -1 है तो क्यूब रूट हो जाता है इसका. क्यूब रूट हो जाता है, स्क्वायर रूट नहीं होता, ठीक हो गया. सही। ये -1 है, -1 का क्यूब -1, इट मीन्स कि -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 विल गिव अस -1। तो -1 का अगर आप क्यूब लें, क्यूब रूट लें तो वो -1 आता है। ठीक. स्क्वायर रूट तो नहीं एग्जिस्ट करता कि -1 का अगर आप स्क्वायर लें ना वो +1 आता है। ठीक. सो कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका अगर आप स्क्वायर रूट लें तो वो -1 हमें दे दे। ठीक. सो दैट्स वाई स्क्वायर रूट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक हो गया. ठीक है, तो ये, सो दैट्स इट। एनी क्वेश्चन? ठीक है.